Afternoon, students. Today we are going to start our last but one experiment. That's experiment number 24. Identification test for boric acid. Boric acid already we have studied in antimicrobials. Particular agents. So the physical properties, physical taste, uses, storage. Already we are discussed. We are also performed the assay of boric acid. So at the time also we are studied about the boric acid and its molecular weight and its IP standards. So here we have discussed only its identification test. In the IP, particularly there are two tests given for the identification of boric acid, and that's included in our manual in experiment number 24 under the aim to perform identification test on the given sample of boric acid as per IP and B. So physical test as usual you should be prepared yourself. Now identification test, there are only two tests. So both the tests are very small and simple. So that's we see one by one. First आपके लिए ब्लैक बोर्ड्स के ऊपर लिख के रखा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू द मैनुअल इन पैराग्राफ हाउ दैट टेस्ट इज गिवन दैट विल सी फर्स्ट. मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर यहाँ हमने क्या किया हुआ है वो भी देखिए. Dissolve 0.1 gram by gentle warming with 5 ml of methanol, to which a few drops of sulfuric acid have been added, and ignite the solution. The flame has green border. यानी इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सैंपल लेना है 0.1 ग्राम, उसको डिसॉल्व करना है मिथेनॉल में. 5 ml methanol should be taken and little bit warm that solution so that boric acid easily soluble in bleach. अब जैसे ही वो soluble हो जाए, few drops of sulfuric acid should be added. अब ये जो सॉल्यूशन है आपके टेस्ट ट्यूब में, जिसके अंदर में 0.1 ग्राम सैंपल डाला हुआ है और 5 ml मिथेनॉल में उसको सोल्यूबल किया हुआ है, और उसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड. दैट सॉल्यूशन वी आर टेकन ऑन दैट स्पैचुला एंड प्लस इंसर्ट इन द फ्लेम. जो बर्नर है आपके, तो उसका जो फ्लेम होता है उस फ्लेम के अंदर वो स्पैचुला आपको इंसर्ट करना है. तो क्या होगा, जैसे आप स्पैचुला इंसर्ट करोगे तो जो फ्लेम है उस फ्लेम का बॉर्डर जो है वो ग्रीन हो जाएगा. दैट आउटर बॉर्डर ऑफ दैट फ्लेम becomes green due to the burning of that boric acid ions. H3BO3 जैसे जलने लगेगा तो वो बॉर्डर को ग्रीन करेगा. That's the typical identification test for the boric acid. अब ये जो खासियत है ये सिर्फ boric acid में है. So that is the one of the most important identification test for boric acid. The second test, that is dissolve 3 grams in a 90 ml of boiling water, cool the solution. It is faintly acidic to litmus, pH ranging between 3.8 to 4.8. अब बोरिक एसिड का प्रॉपर्टी आपको पता है, स्लाइटली सोल्यूबल. So we have dissolved that boric acid in a boiling water. बॉइल करना है तो वो जो है सोल्यूबल हो जाता है, और जब सोल्यूबल हो गया then we have cool that solution.
and use the litmus paper. Perform the litmus test. आपको पता है क्या एसिड्स में अगर आप ब्लू लिटमस डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, एंड रेड लिटमस आप डालोगे तो वो रेड ही। तो यहाँ पर भी हमें वही चेक करना कि हमारा जो सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एसिडिक और अल्कलाइन, सो इट्स एसिडिक टू लिटमस, यानी ब्लू लिटमस अगर आप इस सॉल्यूशन में इंसर्ट करते हो तो इट बिकम्स रेड, and reds अगर आप insert करते हो it remain as it is. So we are saying that solution is faintly acidic to liquids, and if we are getting this test positive, we are saying the test is complies, and we are note on the result. The given sample of boric acid was found to comprise the test A and B as per I. So that's your today's last one experiment. Experiment number 20. Okay. So the last experiment that we'll see after few minutes. Okay. Thank you. Our next experiment and the last experiment of your first year pharmaceutical chemistry. That is the identification test for ammonium chloride. Experiment number 25. Identification test for ammonium chloride. A. To prepare to perform the identification test on the given sample of ammonium chloride as per IP and B. अब यहाँ पर भी हम जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं अमोनियम क्लोराइड की, दैट्स वी आर परफॉर्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अमोनिया और अमोनियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। तो आपने क्लोराइड आयंस के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है क्लोराइड्स के वो तो ऑलरेडी आपने परफॉर्म किए वेरी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 18 में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सोडियम क्लोराइड। आपने जो 4 टेस्ट थे उसमें 2 टेस्ट जो थे वो क्लोराइड आयंस के लिए थे और 2 टेस्ट जो थे वो सोडियम आयंस के लिए। तो आपको क्लोराइड आयंस के लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म करना है ये पता है। सो फर्स्ट we are discussing about the ammonium chloride. Ammonium chloride, that's formula of that ammonium chloride, all of you know that NH4Cl. So chlorides and NH4, that's 2 ions. So for that we are perform the test. Already ammonium chloride we are discussed in expectorants and in electrolytes particularly. So it is used as a expectorants, it is also used as a systemic alkalize acidifier and it is also used as a diuretic. तो ये आपको अच्छी तरह से पता है। Physical properties of ammonium chloride that also all of you know very well. So there is no need to repeat here. उसके जो physical properties है, physical test है, वो repeat करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम उसके जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, पर्टिकुलरली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अमोनियम एंड क्लोराइड आयंस, इन दोनों टेस्ट जो टेस्ट दैट्स वी आर करेंगे। क्लोराइड के लिए ऑलरेडी हमने परफॉर्म किए। सो फर्स्ट वी सी द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अमोनियम। In your manual, there is a 4 tests given for identification of ammonium chloride as per IP. 4 टेस्ट दिए हुए, टेस्ट ए, टेस्ट बी, टेस्ट सी एंड टेस्ट डी। अब ये 4 टेस्ट अगर आप कंपेयर करोगे आपके एक्सपेरिमेंट नंबर 18 के साथ,
आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सोडियम क्लोराइड। तो ये चार, और जो एक्सपेरिमेंट नंबर के अंदर जो टेस्ट दिए हुए हैं चार, उसमें दो टेस्ट जो है वो कॉमन, एंड दैट टेस्ट वी आर सेइंग फॉर द क्लोराइड आयंस। जो कॉमन टेस्ट है वो हम क्या कहेंगे कि भाई क्लोराइड्स में, और जो टेस्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 18 में नहीं है, तो दैट टेस्ट दैट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अमोनिया or ammonium ion, that's NH4 ions. Okay, so that test A and B, that's we are performed for ammonia or NH. So we see one by one that test first, and later we will discuss about the test for chlorides. So first I'll read the test as per our manuals given, that's in a paragraph. अब यहाँ पर आप देखते हो, एंड सपोज द टेस्ट इन स्टेप वाइज, जो टेस्ट है वो मैंने स्टेप वाइज लिखे हुए हैं, उसके ऑब्जर्वेशंस भी देखिए एंड इन्फ्लुएंस भी। सो वी रीड फर्स्ट एज पर आवर मैन्युअल। टेस्ट ए, हीट the few milligrams of substance being examined, यानी आप जो एग्जाम, आपको एग्जाम करना है, एग्जामिन करना है, टेस्ट लेना है, उसका सैंपल आपको लेना है विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको मिक्स कीजिए और हीट कीजिए। अमोनिया इज इवॉल्व, अमोनिया जो है वो इवॉल्व, which is recognizable by its characteristic odor and by its action on moist red litmus paper which turns। अब जब आप सैंपल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करोगे और हीट करोगे तो फ्यूम्स प्रोड्यूस होने वाली है अमोनिया। अब ये अमोनिया का स्मेल आपको पता है, यू आर यूज्ड इन लैबोरेटरी अमोनिया सॉल्यूशन, तो आपको उसको कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आपको उसका याद होगा ही। जैसे आपने स्मेल लिया तो जिस तरह से आपको झंझनाहट महसूस हुई थी, तो वो आपको याद होगी। हमने अमोनिया सॉल्यूशन का यूज किया, प्रयोग किया है लिटमस टेस्ट में। तो ये अमोनिया सॉल्यूशन का जो स्मेल है वो स्मेल आपको आता है, तो आप उसको तुरंत आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि भाई दैट इज द स्मेल ऑफ अमोनिया। इतना ही नहीं, हम लिटमस पेपर द्वारा उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। सो वी आर टेकन द मॉइस्ट रेड लिटमस एंड जस्ट कीप इनटू दैट फ्यूम्स, जो टेस्ट ट्यूब में से निकल रहे फ्यूम्स, उसके अंदर अगर आप उसको इंसर्ट करोगे तो आपका जो लिटमस पेपर है दैट टर्न्स, सो आई एम राइट हियर स्टेप वाइज। Take a sample, add sodium hydroxide, heat, gently. Then ammonia is evolved, recognized by its characteristic odor. Second, take a moist red litmus paper, keep on the mouth of test tube. तो टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उसमें आप पकड़िए, जो फ्यूम्स निकल रही है वो फ्यूम्स जब उस मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट होगी, so that litmus paper turns pink. So that's we are saying the taste is complex. Okay, ये हो गया आपका टेस्ट A. Then test B, that is also simple. We are performing 2 steps. अब इसमें आपको समझना है थोड़ा सा कि क्या करना है। आप पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, but if you are read more than 2 times 3 times slowly, then definitely you should understood exactly what you should be to perform this test। यानी आपको ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या करना है ये आपको समझ में आएगा जब आप उसको 2-3 बार धीरे धीरे पढ़ोगे तब। If you read fast non-stoply, then you cannot understand the taste exactly and you cannot find out the steps involving in that taste. Okay,
So I'll read first this test slowly. To the solution of ammonium chloride, add 0.2 gram of light magnesium oxide. यानी आपको सॉल्यूशन बनाना है अमोनियम क्लोराइड सैंपल का और उसके अंदर थोड़ा सा 0.2 ग्राम्स ऑफ लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो डालें। अब ये अमोनियम क्लोराइड में जब आप लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड डालते हो तो रिएक्शन होगा और कुछ बबल्स यानी गैस जो है वो निकलेगी। अब इस गैस का आपको यूज करना है, जो फ्यूम्स निकलने वाले हैं, जो गैस प्रोड्यूस होने वाली है, उस गैस को आपको यूज करना है। पास अ करंट ऑफ एयर थ्रू द मिक्सचर and direct the gas that is evolved to just beneath the surface of mixture of 1 ml of 0.1 molar hydrochloric acid and 0.05 ml of methyl red solution। यानी आपने जो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने जो लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला, तो उसमें जो रिएक्शन हुआ उसमें से जो फ्यूम्स निकलने वाली, उस फ्यूम्स को आपको डायरेक्ट दूसरे मिक्सचर की, तो आपको क्या करना है, एक एयर करंट जो है वो पास करना है इस मिक्सचर से और फ्यूम्स को ट्रांसफर करना है दूसरे मिक्सचर। अब दूसरे मिक्सचर में कौन से, तो जिसमें आपने 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है और उसमें 0.05 ml यानी 1 ड्रॉप मिथिल रेड सॉल्यूशन डाला। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब आप मिथिल रेड सॉल्यूशन डालोगे तो वो पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा, रेडिश पिंक। तो उस सॉल्यूशन में यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मिथिल रेड के मिक्सचर में आपको ये जो है गैस पास करना है, जो आपका सैंपल अमोनियम क्लोराइड और लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड के मिक्स करने के बाद मिलता है, उसको आपको ट्रांसफर करना है। ओके, अब ये जब रिएक्शन होगा, आपका जो गैस प्रोड्यूस हुआ है लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड के रिएक्शंस द्वारा, तो आप एयर पास करोगे तो वो एयर क्या करेगी, उस गैस को लेकर जाएगी इस दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 ड्रॉप मिथिल रेड का है। जैसे ही वो गैस इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा मिथिल रेड वाले, सो इट टर्न्स येलो, तो उसका जो कलर है वो येलोइश होगा। और जैसे ही आप उसके अंदर उस सॉल्यूशन के अंदर जो येलो सॉल्यूशन हो गया है, उसमें अगर आप सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट डालते हैं तो इट प्रोड्यूसेस येलो प्रेसिपिटेट। ये आपको समझ में आना चाहिए। सो यहाँ आपको ये स्टेप्स जो है इसमें ये समझ में आना चाहिए। सो आई एम राइट हियर स्टेप, टेक अ सैंपल, add 0.2 gram of light magnesium oxide, gas evolve। तो इस रिएक्शंस के द्वारा जो गैस प्रोड्यूस होने वाला है वो ट्रांसफर इन द मिक्सचर ऑफ 0.1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 0.05 यानी 1 ड्रॉप मिथिल रेड मिक्सचर में आपको ट्रांसफर करना है। उसके लिए आपको क्या है, उसको करंट ऑफ एयर पास करना, आप फ्लो करना है, तो वो इसके अंदर ट्रांसफर होगा। और जैसे ही ट्रांसफर होगा तो उसमें जो सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और मिथिल रेड का, तो उसका कलर जो है वो येलो, कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू येलो। ये हो गया फर्स्ट। अब जब आप टू अबव सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन में जब आप 10% सॉल्यूशन का 1 ml डालते हो सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट, तो क्या होगा, ये जो येलो कलर है तो येलो प्रेसिपिटेट में तब्दील होगा। एंड देन वी आर सेइंग द टेस्ट इज कॉमन। तो ये जो दो टेस्ट है,
ये दोनों टेस्ट है पर्टिकुलरली फॉर द अमोनिया NH4 आयंस। अब क्लोराइड आयंस की टेस्ट ऑलरेडी आपने परफॉर्म की हुई है एक्सपेरिमेंट नंबर 18 में इन रेडिफिकेशन टेस्ट फॉर सोडियम क्लोराइड। तो वो भी आपको मैं शॉर्ट में वापस एक बार उसका रिवीजन करवा देता हूँ, लेकिन आपका ये चारों टेस्ट है वो कंप्लीट। तो ये दो टेस्ट आपके समझ में आ गए आपको, हाउ टू परफॉर्म एंड हाउ टू राइट एंड हाउ टू नोट डाउन द ऑब्जर्वेशंस एंड इनपुट्स। ओके, तो ठीक आपके मैनुअल्स में आपको तो टेस्ट तो नहीं लिखना है, बट यू शुड राइट ऑब्जर्वेशंस स्टेप वाइज एंड नोट डाउन द फाइनल कंक्लूजन आप इन इनफरेंस वाले कॉलम। Now test C, that is a test for chloride ions. Test C, that's for chloride. So I read the test first. तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या होने वाला है। वेरी कॉमन टेस्ट है, सैंपल लेना है आपको अमोनियम क्लोराइड का, उसको एसिडिफाई करना है विद नाइट्रिक एसिड और उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालना है, दैट व्हाइट कटी प्रेसिपिटेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। द सेम टेस्ट इज देयर। अब ये कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डालते हो तो वो इंसोल्यूबल रहेगा, लेकिन अगर आप वापिस उसको वॉश करते हैं पानी के साथ में और उसमें डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन डालते हो तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप वापिस नाइट्रिक एसिड डालते हो तो वो रिप्रेसिपिटेट हो जाएगा। यानी इसमें आपके 3 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व। फर्स्ट टेस्ट में आपको प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करना है, सेकंड स्टेप में वो प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल है या नहीं ये देखना है, थर्ड स्टेप में वो प्रेसिपिटेट जो है वो सोल्यूबल हो जाता है, एंड लास्ट स्टेप में वो रिप्रेसिपिटेट आपको करना है। यानी 3 नहीं 4 टेस्ट, 4 स्टेप्स में ये टेस्ट आपको परफॉर्म। हमने वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी ये 4 स्टेप्स जो थे वो परफॉर्म किए। सो I will just note down on that board is C. First step क्या था आपका, एक सैंपल लेना है आपको, ऐड वाटर, उसको डिसॉल्व कीजिए, देन ऐड नाइट्रिक एसिड, एसिडिफाई कीजिए नाइट्रिक एसिड के साथ थोड़ा सा डालना है आपको, देन ऐड सिल्वर नाइट्रेट 1.5 लीटर सिल्वर नाइट्रेट। क्या मिलेगा आपको, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट डेंस लिक्विड ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेप क्या है, टू अबो सॉल्यूशन ऐड dilute nitric acid, then precipitate is insoluble. Okay. The third step, we'll wash the precipitate and add ammonia solution. We'll wash it with water and add ammonia solution. The precipitate is soluble.
सोल्यूबल होगी। तो 4 जो स्टेप्स है आपकी क्लोबो सॉल्यूशन, ऐड नाइट्रिक एसिड, so precipitation is occur. Is observed. तो ये 4 स्टेप्स में हमें ये मिलता है। सो वी आर राइट हियर टेस्ट इज कॉम्प्लेक्स। ये हो गया आपका टेस्ट सी। ये टेस्ट डी, वो भी आपको इसी तरह से परफॉर्म करना है स्टेप वाइज। सो बिफोर टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड, just I read that test as per given in manual. Introduce into test tube 0.5 gram of the substance being examined, equivalent to about 10 milligram of chloride ions. Then add 0.2 gram of potassium dichromate and 1 ml sulfuric acid. Place a filter paper strip moistened with 0.1 ml of diphenyl carbazide solution over the mouth of test. The paper turns violet red. ये सिंपल एक ही स्टेप में आपका टेस्ट। इसमें क्या करना है आपको 0.5 ग्राम्स ऑफ सैंपल लेना है, उसको आपको 0.2 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करना है, उसमें ऐड 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। Then take a moistened filter paper with a diphenyl carbazide solution and keep that mouth of test. So the fumes produced, that fumes turns that paper into violet. So that's your identification test for chloride ions. Okay. So I'll write here sample plus 0.2 gram of potassium dichromate plus 1 ml sulfuric acid। तो ये जब हम ये मिक्स करेंगे तो फ्यूम्स आने वाले। अब इस फ्यूम्स में आपको क्या रखना है, मॉइस्चर फिल्टर पेपर। मॉइस्चर किसके साथ करना है आपको, डाइफेनिल कार्बाइड के साथ उसको मॉइस्ट करना है, उसको उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रखना है। सो आई राइट हियर place or keep the filter paper moisture with carbazide on mouth of test tube. Okay. So what happens? डाइफेनिल कार्बाइड सॉल्यूशन में मिला करके वो जो फिल्टर पेपर है वो आपको टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रखना है, जिसमें हमने सैंपल ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड 1 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो जो फ्यूम्स रिएक्ट होने वाली, so that fumes will react with that moisture filter paper, so that turns into violet.
test is done. तो ये दो टेस्ट हमने एक्सपीरियंस नंबर 18 में देखे हैं. That's where performance provided. So when all these tests A, B, and C and D applies, then we are saying the given sample of ammonium chloride was found to be complies the test A, B, C, D as per IP. Okay, so that's our research. And here we have completed our experiments. जितने हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए. So on Monday you are going to face your exams. So in which that exam you are facing online. So definitely we are asking some questions to you. You must be able to write the answers of all that question. So you are getting the maximum marks. Okay. And you must be completed your manuals as per the pattern this I am saying to you day to time. And you should be prepared for your exam. As per timetable, you may face your third sessional practical exam on 7th of June. This coming Monday. Okay, so best of luck to all of you. Thank you.